Good morning, class. So, as in the previous classes, we have studied about what is distance, what is displacement, and about the motions, the two kinds of motion, that is the uniform motion and the non-uniform motion. So, I hope you might have all read those. So, again, I would like to say that as you all know that the world is going through a great disaster as the COVID-19 is everywhere. So I would like to tell you that please everyone stay at home, stay safe, and if at all it's required, don't only go out of home, else be in home, study, and there are a lot many things to do at home. So now we will take up the next topic. The next topic is speed. As you have already told you, I have studied about what is motion, what is different kinds of motion, what is distance, what is displacement, and what is the difference between distance and displacement. So now we will take up speed. So what is speed? It's very easy. Everyone might have studied in the previous classes in science that what is speed. Speed is nothing but the distance traveled divided by the time taken. Exactly, this is the speed. What speed is nothing but the distance traveled, the amount of distance that you cover divided by the total time taken to cover the distance is called as speed. Okay, so what can speed tell you about? Suppose if you are moving in a car, suppose if this is the car, if you are moving in a car from place A, and if you reach from a car from place A to place B, you travel a certain distance, from here to here, a certain distance you travel, say this to be 50 kilometers, certain time you take to travel the distance, say tell to be 5 hours. Okay, so you have taken 5 hours to travel the distance of 50 kilometers. So what does speed tell you? Speed also tells us about how fast an object or any material or a car, anything you can take, how fast an object is moving, how fast or how slow an object is moving. It tells us about how fast or how slow an object, for example, take it a car here, is moving. So this basically gives you an idea of how fast or how slow a car, that is an object, is moving. Now we'll go further to this and I'll tell you what is the SI unit of speed. You itself can tell me what is the SI unit of speed. How do we find the SI unit of speed? See, as we know that speed is equal to distance by time. So distance, how do we measure distance? We measure distance in meters and we measure time in seconds. So what does it become? It becomes meter per second. And if you want to remove this slash, you need to write it as meter per second to the power of -1. Meter second to the power of -1. Because if you are removing this slash, this is nothing but this is equal to m by s. So if this comes here, this comes in the numerator, it becomes to the power of -1. So speed is nothing but distance by time, and that is meter per second. This is the SI unit, meter per second. If you go to even the smaller unit of this, this becomes centimeter per second. And if you go to the larger unit of this becomes kilometer per hour. This becomes kilometer per hour. Okay. So now I will tell you how do we represent this in the physical form. I think you might have noted down this. Speed is nothing but distance traveled divided by time taken. Speed is d by t. So this is d. Distance we measure in meters, and the higher value we measure in kilometers. Even the higher value we measure in miles. And I have told you in the previous class, 1 mile is nothing but is equal to 1.6 kilometers, almost 1.5 of a kilometer. So distance is speed is distance by time, meter per second. That is, and the SI unit is meter per second. The smaller unit, even the smaller unit of this can be centimeter per second, or even the larger unit can be kilometer per hour, or even the larger we can go for miles and all. Okay, so now we'll move on and we'll see how do we represent the speed in terms of science. We'll write here, let the speed be represented by what? Say v. Okay, let the distance
b equal to s. Do not confuse, because since speed starts with s, so we will write here s. No, let the speed be represented by b, let the distance be represented by s, and let the time taken to cover the distance, let the time taken to cover the distance be equal to t. So now if we use the previous formula or the above formula, what do we get? Speed is nothing but distance divided by the time taken. So speed is nothing but the distance divided by the time taken. So what can we write speed? How have we represented the speed? We have represented the speed by the letter v. So we can write v is nothing but v is equal to distance s divided by t. So this is how we represent numerically speed is equal to distance by time. This is very important as you need to learn it, and this will be used in the coming numericals that we'll be doing in the coming time. So basically v is equal to s by t. I have told you what is speed, what I defined you also what is speed, what does speed represent, and then numerically how do we represent the speed, and what is the SI unit of speed. Now the next very important thing comes is that as we have studied in the last class, a vector quantity and a scalar quantity. You all might have known what is a scalar quantity. There was a few questions which came to me saying that, sir, how if someone asks me what is a scalar quantity and what is a vector quantity, how do I differentiate among that? मतलब अगर किसी ने मुझसे पूछा कि सर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो मैं उसका अंतर कैसे बताऊंगा? तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? You have only magnitude. स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड होता है, but there is no direction. But there is no direction. But in the case of vector quantity, it has magnitude. It has magnitude as well as the direction. As well as the direction. So basically what happens, scalar means what? It will have only magnitude, and I have already explained to you. मैंने पहले ही आपको समझाया magnitude क्या होता है. It can be the size of the object, it can be the speed of the object, it can be the quantity of the object. So basically magnitude अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, magnitude is a jargon to me. I don't understand what's magnitude. Magnitude वही होता है, मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट का साइज उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है, क्योंकि वो उसका एक फैक्टर होता है जो जिस पे बहुत चीज़ें डिपेंड होती है. उसका एक डायरेक्शन एक फैक्टर होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है. सो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी मींस देयर इज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. कोई उसकी दिशा नहीं होती. जैसे मैंने आपको बताया था कल प्रीवियस क्लास में एग्जांपल में कि अगर आपको पटना से अगर आपको दिल्ली जाना है, और फिर अगर आप पटना से आप तमिलनाडु चले गए, तमिलनाडु से आप कर्नाटका चले गए, कर्नाटका के बाद आप गोवा चले गए, गोवा के बाद महाराष्ट्र चले गए, महाराष्ट्र के बाद आप जम्मू कश्मीर चले गए, जम्मू कश्मीर के बाद अगर आप पंजाब चले गए, फिर गुजरात चले गए और वापस दिल्ली जाते हैं, तो क्या इसका कोई डायरेक्शन नहीं बनता है. इट्स टोटली डायरेक्शनलेस. किसी भी तरह से आप हैप्पीली मूव कर रहे हैं, है ना. तो लेकिन स्पीड तो वहाँ होगा ही. आपने पटना से शुरू किया और दिल्ली तक पहुंचे, तो जितना भी आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया उसमें एक सर्टेन स्पीड तो होगा ही. लेकिन अगर आपको मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट निकालना है उसका, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट. तो अगर आपको मान लीजिए आपको अगर पटना से दिल्ली जाना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? पटना आप बेसिकली बिहार से यूपी जाएंगे, यूपी से दिल्ली एंटर करेंगे. दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ. सो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर. सो एंड तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो आप समझ गए स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी. अब बात आती है स्पीड की. अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या स्पीड स्केलर क्वांटिटी है या स्पीड वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? जवाब ये होना चाहिए कि सर स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. अगर आपको दिक्कत हो याद करने में, तो S stands for speed and S stands for scalar. So therefore speed can be set as a scalar quantity. अब आप स्केलर क्वांटिटी से समझ में आपको आ रहा है स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. अगेन मैंने आपको अभी तुरंत एग्जांपल बताया कि अगर आपको अगर पटना से दिल्ली जाना है तो स्पीड तो वहाँ पे होगा, लेकिन आपका वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपको पता नहीं चलेगा. तो वही हो गया कि स्केलर वही होता है, मतलब इसमें कि आपके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन आपके पास डायरेक्शन नहीं होता है. अब अगर मैं कार की बात लूँ, तो आप देखते हैं उसमें बहुत सारे मीटर्स होते हैं कार में लगे हुए सामने में, है ना.
तो उसमें से एक होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करता है, वो आपकी कार की स्पीड को जो है गवर्न करता है, वो आपकी कार की स्पीड को जो है रिकॉर्ड करता है। सो व्हाट इज द स्पीडोमीटर? स्पीडोमीटर records the speed of your car। स्पीडोमीटर क्या करता है, आपकी कार की स्पीड को रिकॉर्ड करता है। और एक दूसरा चीज होता है ऑडोमीटर, और एक दूसरा चीज होता है ऑडोमीटर। एक स्पीडोमीटर जो आपकी कार की स्पीड को गवर्न करता है, दूसरा ऑडोमीटर, ये क्या गवर्न करता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, ये क्या गवर्न करता है आपको कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज मेजर्ड बाय ऑडोमीटर। तो दो चीज हो गया आपको यहाँ पे, एक स्पीडोमीटर हो गया, एक ऑडोमीटर हो गया। स्पीडोमीटर मींस इट रिकॉर्ड्स द स्पीड दैट योर कार इज मूविंग, है ना, वो कॉन्स्टेंटली आपके कार की स्पीड को रिकॉर्ड करता है। ऑडोमीटर क्या करता है, इट रिकॉर्ड्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। एक उसके अंदर एक छोटा सा आपका क्या बोलते हैं वो, छोटा सा आपका एक डिवाइस होता है उसमें, जो कि ये रिकॉर्ड करता है कि आपका डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है कार। सपोज आप पॉइंट ए से पॉइंट बी गए हैं, तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया। सपोज द डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर, तो वो ये रिकॉर्ड करेगा कि जब जहां से आपने शुरू किया, जहां पे आपने खत्म किया है, एक डिजिटल उसमें आपने देखा होगा डिजिटल क्लॉक की तरह एक स्क्वायर शेप में या फिर रेक्टेंगुलर शेप में हर एक कार में एक ऑडोमीटर लगा होता है। वो आपको हमेशा ये कवर करता है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह की दूरी की जो तय की है, उसकी दूरी कितनी है, उसकी डिस्टेंस कितनी है। और स्पीडोमीटर क्या रिकॉर्ड करता है कि किस स्पीड से, किस गति से आपकी गाड़ी एक समय पर चल रही है। ओके, आई होप इतने तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने स्पीड के बारे में देखा, स्पीड क्या होता है ना, स्पीड क्या होती है, एसआई इंटू स्पीड के बारे में देखा हमने, डिफाइन किया हमने स्पीड को, और हमने ये भी पढ़ा कि इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ये सब चीज देखा अभी स्पीड के बारे में। अब हम जानेंगे एवरेज स्पीड क्या होता है। आपने सुना होगा कि कोई गाड़ी जो है 60 किलोमीटर चली और 60 किलोमीटर चलने में उसे 6 घंटे लगे, तो हम निकालते हैं कि जो उसका एवरेज स्पीड है दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो वही हम यहाँ पढ़ेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होता है। इट इज नथिंग बट इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। वही होता है एवरेज स्पीड। अगर आपको किसी चीज़ का एवरेज निकालने के लिए बोला जाए, मैथ्स में आपने पढ़ा है कि अगर आपको एवरेज निकालने के लिए बोला जाए, अगर तुम इसका एवरेज निकालो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो आप क्या कीजिएगा, आप 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, और फिर आप किससे इसको डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5, सो दिस बिकम्स 3। इसी तरह यहाँ भी हम निकालते हैं कि एवरेज स्पीड इज नथिंग बट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। सपोज लेट अ कार ट्रैवल्स 60 किलोमीटर्स इन 6 आवर्स। ओके, तो क्या होगा 60 डिवाइडेड बाय 6, एवरेज कितना होगा 10 किलोमीटर्स पर आवर हो गया। तो मान लीजिए अगर 1 घंटे में if a car travels 60 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हुआ, हर एक मिनट में कितना वो गाड़ी ट्रैवल कर रही है 1/68 ऑफ दी किलोमीटर्स पर आवर इतना ट्रैवल कर रही है 1/60, है ना। तो गाड़ी कितना ट्रैवल कर रही है 1/60, हर एक मिनट में कितना 1/68 ऑफ द किलोमीटर वो गाड़ी ट्रैवल कर रही है। अगर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो हर एक मिनट में जो है वो इतनी दूरी तय कर रही है। तो इसी को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब है कि जो भी आपको टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है और टोटल टाइम जितना लिया है किसी भी वस्तु ने, किसी भी
गाड़ी ने उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, उसी को हम एवरेज स्पीड कहते हैं। अगर हम टोटल डिस्टेंस को ऐड अप कर लें और टोटल टाइम को ऐड अप कर लें और दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करें, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दें, तो हमें वहाँ पे एवरेज स्पीड मिल जाएगा, है ना। इसको हम कैसे दिखाते हैं? इसको हम सिंपली दिखाते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। TD इज नथिंग बट द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई दी टोटल टाइम। ओके, एवरेज स्पीड इसी को कहते हैं। इसमें कुछ हार्ड, कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी सिंपल थिंग, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दिस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दैट इज, जैसे हमने पढ़ा था मोशन में क्या था, दो टाइप का मोशन थे। एक थे यूनिफॉर्म मोशन, एक था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वैसे ही स्पीड में भी दो तरह के हैं, एक है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आई होप कि आप इन सभी चीज़ों का नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है तो उसके लिए आपके पास एक खुद का बनाया हुआ नोट्स होना चाहिए, जिससे कि आपको समझ में आए कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मुझसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और कहाँ और सुधार की ज़रूरत है। मैंने बार बार यही कहा है, मार्केट में बहुत सारे नोट्स मिलते हैं, उस नोट्स को खरीद के पढ़ने से ज़्यादातर फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो किसी और की रचना होती है और कोई और किसी अपने ढंग से उसे बनाता है। लेकिन अगर आप अपने ढंग से पढ़ोगे, हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चा की समझने की क्षमता अलग होती है, जानने की क्षमता अलग होती है, उस चीज़ को अलग तरीके से देखता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नोट्स को खुद से बनाएं, ना कि जाके मार्केट में जो बिक रहा है उसे खरीद लें, क्योंकि वो बहुत आसान है वो चीज़ करना, और आसानी से कोई भी चीज़ पाई नहीं जा सकती है जब तक आप उसके लिए मेहनत ना करें। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, जो मैं क्लासेस में बता रहा हूँ आप उसे दोबारा खुद से भी पढ़ें। ये नहीं कि सिर्फ क्लासेस में अगर बता दिया गया है तो वो बस काफ़ी है, नहीं, वो आपको एक आइडिया देता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। आप उसको अगर दोबारा किताब खोल के पढ़ेंगे तो आपको वो और अच्छी तरह से समझ में आएगा, और बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा ये पता चलेगा कि कहाँ मुझे समझ में चीज़ें नहीं आई हैं और कहाँ मुझे और सुधार की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ मुझे और मेहनत करनी चाहिए। तो बेसिकली हमने पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, दो तरह का मोशन होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसी तरह से स्पीड भी क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। काफ़ी बच्चे लोग नाम से ही समझ गए होंगे यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो हम ये पढ़ेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। Uniform speed is nothing but same as that of the uniform motion. Means if we travel equal distances in equal interval of time, irrespective of what, however small the time interval is, that is called as uniform speed. That is, if we travel equal distances in equal interval of time, if we travel equal distance in equal interval of time, no matter how small the time interval is, इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब अगर कोई गाड़ी चल रही है और वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल टाइम में, है ना, तो चाहे वो कितना भी छोटा टाइम इंटरवल क्यों ना हो, क्यों ना वो सेकेंड्स में हो, क्यों ना वो आवर्स में हो, या कितने भी छोटे टाइम इंटरवल क्यों ना हो, क्यों ना वो मिली सेकेंड में ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल टाइम में,
तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। वही मैंने लिखा है कि इफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट और अ कार, एनीथिंग यू कैन से, travels equal distance in equal interval of time, no matter how small the time interval is, it is known as uniform speed. अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल में, आप समझ लीजिए क्या, अगर एक कार ट्रैवल कर रही है से 60 किलोमीटर पर आवर, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि हाफ एन आवर में कितना ट्रैवल करेगी, हाफ एन आवर में 30 किलोमीटर्स, अगर एक क्वार्टर में कितना ट्रैवल करेगी, तो कितना 15 किलोमीटर्स, दैट इज इन 15 सेकेंड्स, 15 किलोमीटर्स इन 15 सेकेंड्स, है ना। इट मीन्स दैट पर सेकेंड द व्हीकल इज ट्रैवलिंग हाउ मच, अगर 60 किलोमीटर्स पर आवर, तो पर मिनट कितना ट्रैवल कर रहा है, पर मिनट 15 किलोमीटर्स, सॉरी इन 15 मिनट्स, सेकेंड में सॉरी 15 मिनट्स हो गए यहाँ पे, और 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 1 मिनट में अगर 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 15 मिनट 15 किलोमीटर, 30 मिनट में 30 किलोमीटर, देखो 60 मिनट में गाड़ी 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। इसका मतलब क्या है, जो टाइम इंटरवल है वो भी मेरा बराबर है, और जितना डिस्टेंस जो गाड़ी कवर कर रहा है वो भी मेरा बराबर है, 1 किलोमीटर, है ना, 1 किलोमीटर पर 1 मिनट ट्रैवल कर रहा है। अगेन 2 किलोमीटर सेकेंड मिनट, वैसे वैसे 60 किलोमीटर इन 60 मिनट्स विच इज इक्वल टू 1 आवर, 60 किलोमीटर इन 60 मिनट्स विच इज इक्वल टू 1 आवर। तो इसका मतलब यही है कि द vehicle or object is traveling equal distances in equal interval of time, no matter how small the time interval is. This is very important, you need to keep this in mind always, you need to keep this in mind. मैं बार बार कहता हूँ आपको, साइंस और मैथ्स में रट्टा नहीं लगाया जा सकता है, ये हमारे देश की एक बहुत पुरानी प्रथा है कि सब कुछ रट्टा मार के कर लेंगे, लेकिन प्लीज़ मगअप करना बंद कीजिए। मगअप करने से आप बहुत दूर नहीं जा सकते हैं, आपको सिर्फ पास मार्क्स आ सकता है, या बहुत से बहुत आप किसी तरह से फर्स्ट डिवीज़न ला सकते हैं, लेकिन बहुत दूर नहीं जा सकते, क्योंकि मगअप करने वाले बहुत दूर तक नहीं जाते। हर एक चीज़ों को मगअप नहीं किया, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, कितने सारी चीज़ों को आप रट्टा मारिएगा। ब्रेन का भी एक सर्टेन कैपेसिटी होता है जो कि वो उतना ग्रास कर सकता है, उतना ले सकता है, हर चीज़ को आप रट्टा नहीं मार सकते। इसलिए आप चीज़ों को समझिए, उसको रिलेट कीजिए, को रिलेट कीजिए अपने जीवन से, अगर ये हो रहा है, क्योंकि आपके सामने ही सब कुछ है। फिजिक्स इज व्हाट, फिजिक्स इज लाइक एवरीथिंग इज देयर इन द वर्ल्ड, सब कुछ आपके सामने है, क्या है क्या नहीं है सब कुछ आपके सामने है, तो आपको पता होना चाहिए। आपके सामने गाड़ी है, आपके सामने स्पीड डिस्टेंस है, आपके सामने दूरी है, सब कुछ है, तो आपको पता चल सकता है उसमें कि उसमें आपको आप इजीली ये आप अपने जीवन से रिलेट कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, प्लीज़ मगअप मत कीजिए, किसी भी चीज़ को मगअप करने की कोशिश, रट्टा मारने की कोशिश ना कीजिए।